Hi everyone, good evening. A warm welcome to everyone to today's webinar. I, Yash Tugar, founder of Crest Research and Educare. I welcome you all to today's webinar. I hope everyone is safe and doing good. Just a quick yes on the chat box if my voice is clearly audible to everyone. Just a quick yes so that I can move ahead. Perfect. I'm getting a lot of yeses. Perfect. Great. So as of course, last 1 or 2 weeks, we could not meet because I was busy in some work, and definitely I got a lot of messages that please start off with the webinar. So of course we are back. Okay. So as we start every webinar with a live learning, today also I've come up with a great live learning, which I would like to share with you all. Okay. So today's live learning is the pleasure is always in giving, not in taking. What you give, you get back, right? The pleasure is all in giving, not in taking. What you give, you get back. Okay. So if you give nothing, you get back nothing, right? So that is a very, very important thing, which is a very important life lesson for all of us, because be it life or be it markets, like, okay. So in markets, what happens is if you don't give your time, if you don't give your time onto research, onto gaining knowledge, on finding the new stocks, right? Then the market won't give you back returns. If you give nothing to the markets, you'll get back nothing, right? The same thing happens in life. If you just think of just taking and not giving it to others, right, then you will get back nothing. Okay. So this is in short also called as karma. What you do, what you get. Okay. So I think this is, I'm a firm believer of this, and I think everyone should believe on this, that be it markets, be it anything in life, you should always think of giving more and taking less, because once you give more, God is there to give you more. Okay. So that is my belief. If you also believe, and if you want to practice this, write I pledge on the chat box, so that I'll be happy to that people are writing the life lessons and they are trying to follow it. So write I pledge on the chat box if you believe in this thought and you want to practice it. Okay. Great. I'm getting a lot of I pledges. Thank you so much. So now without wasting much more time, let's start with today's webinar. Of course, we have a great speaker with us who will be sharing some great insights on harmonic trading, on Fibonacci. And so a warm welcome to Mr. Rohan Shah, who is today's speaker. Rohan, a warm welcome. I'll just unmute you so that you can speak. Yes, Rohan, now you can unmute yourself and speak. Yeah, am I audible? Yeah, you are perfectly audible. First of all, thank you so much for inviting me and giving a platform to share my few knowledge over here. And जैसे कि आपने start किया कि karma is a very important thing in life and as well as in market. जो दोगे वो मिलेगा, कई बार ज़्यादा भी मिल जाएगा, but देना भी बहुत ज़रूरी है. I truly appreciate the thought और मैं ये follow भी करता हूँ life में, so I totally agree with you. And everyone should share, and it's like sharing is caring. ये काफी बढ़िया appropriate thought है. And Great. So before we start, let me introduce to you Rohan. So I think Rohan Shah is a technical analyst. He's been pursuing the CMT course, and he has been doing some great work in educating people on Twitter, on various social media platforms. I know, and he's very, very passionate about charts, about technicals. He's even authored a book on harmonic trading, which he'll be discussing maybe at the end. And he specializes in that. And today also he'll be sharing some great insights with us about how he uses harmonic trading in the normal trading setup, and what is harmonic trading all about. So I think we all are very excited to hear you, Rohan, because I've seen your work, and it is amazing what you do for people, and how openly you share your ideas and you give feedbacks on that. So that's really great work you're doing. yeah, thank you so much for these motivating words. Great. So Rohan, as we start every webinar, so I ask all the speakers that, of course, there's some way or there's some time in your life when you started, when you thought that you'll be starting your career with stock markets. And of course, stock markets, when we hear, when we tell our family members or when we tell our relatives, it is something which we don't get a positive response. So how did you start your journey about markets? How did you enter it? And how was your journey till now? Just get us a candid conversation to that, so that we can understand how did you enter the markets.
या श्योर, एज यू राइटली सेड कि मतलब फैमिली में बात करते तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता है. इट्स लाइक कि सट्टा है, इसमें जाओगे तो डूबोगे, पैसा नहीं बनेगा. एंड फ्रॉम बीइंग अ फैमिली बैकग्राउंड, गुजराती बैकग्राउंड, ये बहुत कॉमनली सुना है मैंने अपने बड़ों से. एंड बट बीइंग अ गुजराती ब्लड इन माई सेल्स, मुझे यही करना था, मेरा यही पैशन था. सो माई बेसिकली जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम when was I in college. I started with a bachelor's in financial markets, and fortunately college का time था 4 to 8. It's like in evening, and during the day it was like we are just wasting our time. So fortunately मुझे idea आया कि I should use this time in a practical manner. और मैंने एक स्टेप लिया कि फ्रेंचाइजी एक मेरे यहाँ पे ही था बाजू में. इट वाज अ गुड कनेक्ट, वहाँ पे पहचान भी था. सो ही मस्त पार्ट टाइम के लिए आई थॉट कि मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे. सो फ्रॉम 8:30 to 3:30 आई वाज यूज टू बी इन वर्किंग एज अ फ्रेंचाइजी. मतलब वही व्हाट इज मार्केट, हाउ टू पंच द ट्रेड, सेम जैसे कि जो करियर स्टार्ट करते हैं, पंचिंग द ऑर्डर्स, क्लाइंट्स के कॉल उठाना, ये अच्छा है वो अच्छा है. एंड डूइंग दिस आई वर्कड विथ कॉलेज. वहाँ पे 2 साल मैंने कंप्लीट किए कॉलेज के, और वहाँ पे भी 2 साल हुआ. और उसके बाद आफ्टर कॉलेज आई स्टिल कंटिन्यू ओवर देयर, कि मुझे बेसिक्स वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करना था. एंड इट वाज लाइक मुझे पूरा अथॉरिटी दिया गया था, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, दे आर वेरी सपोर्टिव. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस टू टेक्निकल एनालिसिस. और वहाँ से आई थॉट के मुझे आगे जाके टेक्निकल एनालिस्ट ही बनना है, एंड दिस वुड बी द माई लाइफ टाइम अचीवमेंट, कि मुझे यही करना है और आगे जाके मैं इसमें ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा. एंड दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू टेक्निकल एनालिसिस, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ. Great, Rohan. So I think you mentioned two very important points. Key, of course, when we are young in college or maybe in our late school days, it is very important that we get a lot of idle time. So हम उनसे waste ना करें, and we utilize that in anything. Like, of course, market is something which is very important, and luckily you had evening college, so you utilize your time in markets, and that early learning I think is very very important. Which everyone should get, because वहां से आपका scale up चालू होता है. And the same thing happened with me also, though I had morning college, but I used to get out early, and then of course track markets and a lot of things used to happen. And that those were great learnings, which still help me a lot right now. Yeah, that was the basic. मतलब वो कहते हैं ना कि बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे जाके इजी कुछ भी अचीव कर सकते हो. Right. Absolutely, it was true. मतलब वो एक base building करना बहुत जरूरी है at your early days. So Rohan, just take us the journey from that early college days to your journey to right now, when you're giving professionally, you're working, and professionally you're working as a technical analyst. And how was your journey? How did you? What would be your advice to people, you young people who are watching us, कि कैसे आप अपने कॉलेज डेज से एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो? That journey would be very exciting and would be very inspiring for a lot of people. So just share that journey with us. Yes, definitely. Uh, After completing my 3 years in that franchisee, मुझे वहाँ से एक मतलब ब्रोकिंग फर्म से एक मतलब बहुत मैंने ट्राई किया था कि आई वांट टू बी इन टेक्निकल एनालिस्ट पोजीशन. सो बहुत धक्के खाए, बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वैसे ही 2 साल निकल गए. there was no perfect position जो मैं लुक आउट कर रहा था. एंड इन दैट 2 years आई गिव अराउंड 50 to 60 इंटरव्यूज दिए रहेंगे मैंने. बट मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पोजीशन नहीं मिल रहा था. एंड जैसे कि मतलब वो कहते हैं पैशन है तो मतलब कुछ ना कुछ करके एक रास्ता निकल ही आता है. सो ड्यूरिंग दोस डेज, दो मुझे वो मतलब पैशनेट जॉब नहीं मिल रहा था, बट आई डिडंट लेफ्ट टेक्निकल एनालिस्ट. सीखना मुझे मैं नहीं छोड़ा, मैं काफ़ी बुक रीड करता था. मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पे या फिर आर्टिकल रीड करने में जाता था. एंड टू ट्रेन द आई, लकीली टू गेन द क्विक फास्ट नॉलेज, मैं लकीली क्या करता था कि कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ ना. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था स्टार्टिंग में. सो आई यूज टू गो एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वेबसाइट, मैं उसको इमेजेस में देखता था. कि मतलब ऑन द गूगल देयर इज अ ऑप्शन ऑफ इमेजेस, राइट? सो आई जस्ट यूज टू टाइप ओवर दैट हेड एंड शोल्डर, और उसका इमेजेस दिखता था. सो उससे क्या मेरा आई भी ट्रेन हो रहा था, और आई यूज टू नो कि कौन कौन से पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहे, तो प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ रहा था वहाँ से. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. आप अगर कुछ भी सीख रहे हो तो पहले वो अच्छे से उसको आई ट्रेन कर लो. एंड आफ्टर दैट गो विद द प्रैक्टिकल नॉलेज. आपने अभी हेड एंड शोल्डर सीखा, तो ट्राई इट के बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर यू प्रैक्टिकली गो एंड सी ऑन द चार्ट्स के हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म हो रहा है. आप कम से कम 10 के 10 बुलिश या 10 बेरिश
स्टार्टिंग उससे करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. जैसे कि पता है कि मेरे पास बहुत टाइम था, थ्री इयर्स मैंने वहाँ पे निकाले, फिर 2 इयर्स इन सर्च ऑफ द जॉब. मुझे डिजायर जॉब चाहिए था, तो उसके लिए मैंने 2 इयर्स ऐसे ही निकाले. सो आई वाज लाइक मुझे बहुत टाइम है, एंड आई इन दैट टाइम आई रेड द बुक, एंड प्रैक्टिकली मैं मतलब शेयर भी कर रहा था. इनिशियली आई स्टार्टेड विद फेसबुक पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. देयर आई इनिशिएटेड अराउंड 5 इयर्स. फिर मुझे वहाँ से आइडिया है कि यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ. फिर यूट्यूब भी स्टार्ट किया, एंड आफ्टर गेटिंग इनटू सम गुड रिस्पॉन्स ओवर देयर, देन मुझे किसने बताया कि व्हाई डोंट यू ट्राई ट्विटर. So finally, after Twitter, I joined. Sorry, after Facebook, I joined Twitter. And recently, I am also active a blogger over there. अभी एक मेरा blogging भी है, Shark Tech Views करके. तो वहाँ पे मैं every Sunday try करता हूँ कि कुछ ना कुछ value addition करूँ for the retailers and जिसको सीखना है technical analysis की field में. Great one. So as you told, I think two important points again I'll take. One is definitely the beginning is very tough. Failures would be there, but आपको डटे रहना. Like you told that you gave around almost 50-60 interviews. यहाँ लोग 10-12 इंटरव्यू में थक जाते हैं and they give up. So that is I think that's a very commendable thing that like you kept on it, you kept the hard work, and you like failures आप डरे नहीं, and then finally you achieve success. And secondly, definitely जो आपने अपना reading books and reading habit जो बना के रखा, and the way like as of course like that's a common habit, maybe we share that. I also try to see more on practical things. मैं photos देख के फिर उसको charts पे study करके practically देखता हूँ. That is a very common, that is a very important thing which I feel, because practically जब तक आप नहीं देखोगे, it's not possible for you to actually implement it in markets. So great. And actually of course I also read your blogs, and that is a very really insightful, and you gave some of the other charts, and that is very important. So I'll suggest all the audience also to go through it. So Rohan, that's been a great journey definitely, but हर journey में as I told all the viewers कि कुछ ना कुछ failures होते हैं, and वो failure से निकलना बहुत important है, और निकलना बहुत मुश्किल भी है, but of course we have to failures are the part to success, तो हमें face करने पड़ते हैं. So what were the failures you faced from there in this journey, and फिर जब आपका job लगा, so how do you go from a novice technical analyst to right now where you have been like quite experienced? So वो journey पे क्या failures थे, and how did you overcome that? या डेफिनेटली आफ्टर मतलब बोला कि मैंने 2 साल के बाद मुझे जो डिजायर जॉब था वहाँ पे मिला. द फर्स्ट जॉब आई गॉट ओवर इज दैट एसोसिएट टेक्निकल एनालिस्ट मुझे वहाँ पे मिला. और आई गेट टू लर्न, मतलब जैसे कि आप अगर बाहर जाओगे, जिससे ज़्यादा मिलोगे उतना आपका शेयरिंग ऑफ ये बढ़ेगा, द नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिकली आप कैसे देखना है, आपका पर्सपेक्टिव इंक्रीज होगा. तो वैसे ही मतलब आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हार्मोनिक पैटर्न्स. इट्स नॉट वेरी मच फेमस नाउ डेज, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि अभी मतलब सबको के नज़र में आ रहा है कि हार्मोनिक पैटर्न करके भी कुछ चीज़ है. सो दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हार्मोनिक पैटर्न्स. और वहाँ पे मतलब फेलियर्स तो यही थे कि यू हैव टू बी मतलब एट द टोज के, मतलब यू हैव टू बी कीप वर्क हार्ड. कंपटीशन बहुत टाइट है, और एवरीवेयर मतलब 10 में से 7 लोग टेक्निकल एनालिस्ट होंगे एंड 3 वुड बी फंडामेंटल एनालिस्ट. सो एक ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि अगर आपको एक डिजायर्ड जॉब मिल भी गया, बट यू हैव टू उसमें आपको जस्टिस भी करना है कि you are doing a great job and everyone is happy and fruitful. So मतलब failures कुछ नहीं था. It's like कि मतलब as you go ahead आपको नया नया सीखने मिलता है. जैसे कि try and error होता है, you should keep practicing. तो मेन चीज़ है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप ऐसा एक कुछ साथ में लेके चलो कि आप उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने अभी हार्मोनिक पैटर्न मेरे ग्रिप बिठा लिए, तो इफ़ यू आर गोइंग अहेड एंड यू वांट टू मेक समथिंग इन दिस, आप एक पे मास्टरी कर लो. इट्स नॉट लाइक कि आपको सब सीखना है. स्टार्टिंग में सब सीखो, देन एज पर योर कन्वीनियंट यू गो विथ दिस कि मुझे कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है. इज इट इंट्राडे है या फिर ट्रेड और स्विंग ट्रेडिंग आपको बेटर लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक द नॉलेज एंड कीप गोइंग विथ इट. ऐसा नहीं कि एक बार चला, 2 बार नहीं चला, 3 बार नहीं चला तो उसको छोड़ दो. हैव फेथ एंड कीप प्रैक्टिसिंग. Great one. So I think some great insights that of course at the beginning आपको सब कुछ सीखना important है, because you don't know आप किसमें mastery कर सकते हो, but after a time you should always try to master in one, because as we say the jack of all trades master of none. तो आपको एक चीज में mastery करनी बहुत जरूरी है.
and I think the way you told that harmonic patterns you mastered. So how did you choose? Because the technical world is very big. Like उसमें harmonics है, उसमें Heikin-Ashi है, उसमें candlesticks है, उसमें candlesticks के काफी सारे patterns है. There is Renko chart as well. So why did you choose harmonics, and how did you find that कि मुझे इस पे expertise बनानी चाहिए? Because a lot of people ask me this कि सर मुझे candlestick भी ठीक लग रहा है, Heikin-Ashi भी ठीक लग रहा है, फिर कभी रेंको चार्ट भी ठीक लग रहा है, कभी हार्मोनिक्स भी ठीक लग रहा है, कभी इचिमोकू ठीक लग रहा है. सो हाउ डिड यू फाइंड दैट? बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग. तो आपने कैसे चुना कि नहीं मुझे हार्मोनिक्स में ही मास्टरी करनी है एंड आई विल गो अहेड विद दैट? आई एम फर्म बिलीवर कि मतलब जो ट्रेडिशनली जो था, मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल टूल्स है टेक्निकल के, इट्स लाइक डो थियरी है, राइट? एंड आफ्टर दैट अ वेरी ओल्ड टूल इज फिबोनाची, जो आज के वर्ल्ड में भी यूज हो रहा है. आफ्टर प्राइस पैटर्न, दिस ऑल वेरी मीन्स ट्रेडिशनल टूल्स जो अभी भी बहुत पावरफुल है. सो डो थियरी तो है ही, मतलब, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिबोनाची वाज द वन थिंग व्हिच इंस्पायर मी. आई हैड अ वेरी मच फेथ ऑन फिबोनाची. मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इट्स क्वाइट इजी. बट इफ यू कनेक्ट द स्विंग्स प्रॉपरली, इफ यू हैव योर ट्रेन आई कि कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है नियर द रेशियोज, तो आप उसको अच्छे से पकड़ पाओगे. दिस वाज द फर्स्ट थिंग कन्विंस मी कि हाँ, हार्मोनिक में कुछ तो दम होगा. इट्स टोटली बेस्ड ऑन फिबोनाची. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग क्लिक मी. एंड उसके बाद अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, करेक्ट? आपका रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए. एंड इन हार्मोनिक दिस वाज समथिंग, मतलब काफी अट्रैक्टिव है हार्मोनिक में. कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिस्क खाली 2 रुपीज है और रिवॉर्ड 10 रुपीज है. इट्स लाइक 1:3, 1:5. तो दिस वाज सेकेंड थिंग. और थर्ड चीज है कि मतलब बहुत नोन नहीं है इन इंडिया. एंड एवरी, अगर आपको अगर किसमें अच्छा होना है, आपको यू हैव टू बी, मतलब अबाउ द वाटर रहना है, तो इट शुड बी समथिंग डिफिकल्ट, किसने किया ना हो और बहुत रेयर हो. एंड इट वेरी मच, मतलब इट्स नॉट कॉमन. तो हार्मोनिक वो टाइम पे ऐसा था कि इट वाज नॉट कॉमन. सो दिस थ्री मेन थॉट में. और मेन थिंग है कि ऐसा नहीं कि यही तीन था. एज आई स्टार्टेड अप्लाइंग, मुझे पता चला कि कितना अच्छा सक्सेस रेशियो है इसका भी, और मुझे कौन सा पैटर्न मुझे ज़्यादा सूटेबल है. तो दिस आर द फ्यू थिंग्स कि आई कैरिड अवे विद हार्मोनिक पैटर्न्स, और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ. Great, Rohan. So I think you explained it in details कि of course starting में you have to follow the traditional approach, and उसके बाद आप एक चीज like price action is something which is very important and I think everyone follows. And उसके बाद चाहे वो harmonics हो, चाहे वो Ichimoku हो, चाहे वो Yes. Heikin-Ashi, be it anything, we have to master in that, and that suits your style because everyone has different styles and they can adapt to different methods. So I think this is very important, and as you mentioned कि एक में master करना बहुत जरूरी है so that it gives you an edge in the market, because market में शायद edge नहीं होगा तो you'll suffer in that. So Correct. one final question, Rohan, before I give you the floor to show your presentation. That जैसे आपने बताया कि Fibonacci is a very important old tool, and it is very you use it very much. So उसका एक basic अगर आप, of course you'll be giving in your presentation, but why did you choose Fibonacci as an, because old tools में we have Gann theory, we have a lot of other things. So why do you feel that Fibonacci is very important? Because a lot of people have heard about it but they don't have much knowledge कि क्यों ये important है, and how is impact, like how is it there in I think nature also, right? या एब्सोल्युटली. जैसे कि बताया कि फिबोनाची मुझे क्यों इतना मतलब अच्छा लगा. आपने सुना होगा कि कीप इट सिंपल सिली. सो दिस वाज द मेन थिंग. फिबोनाची बहुत सिंपल है. आप कौन सा भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर ले लो, बेसिक से या एडवांस से, आपको टेक्निकल ये फिबोनाची टूल बहुत इजीली अवेलेबल रहेगा. तो फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड. सिर्फ यही है कि आपको कहाँ से प्लॉट करना है. जैसे कि मतलब आप प्रैक्टिस सबके लिए करना पड़ता है, मे बी कौन सा भी आप टूल ले लो. तो दिस इज हाउ आई लाइक द फिबोनाची वेरी मच. और मेन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि फिबोनाची जो रेशियोज फॉर्म हुए हैं, वो नेचर्स में भी काफी डोमिनेटिव है. जैसे कि पिरामिड में आप देखोगे तो फिबोनाची का अच्छा खासा यूज हुआ है. देन टेकिंग इनटू द प्लैनेट्स का जो रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द टाइम टेक्स, तो इट आल्सो इंक्लूड फिबोनाची नंबर्स. तो उनका मतलब वैसा ही नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल टूल्स में ही ये नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं. इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपका अगर आप हाथ भी अपना मेजर करोगे तो इट आल्सो फॉर्म्स अ फिबोनाची नंबर. सो इट्स ऑल अराउंड अस. फ्लावर्स ले लो, ट्री ले लो, अपने हैंड्स ले लो, टेक अ ईयर,
it's all around us. I hope कि अगर आप ज़्यादा इसमें सीखोगे तो you will get to know कि मैं क्या बोल रहा हूँ. Great, Rohan. I think, of course, I know you'll be sharing this with practical examples and with a lot of explanations. So now let's give you the floor so that you can share your great insights on Fibonacci and as well as harmonic trading and how ABCD harmonic pattern we can use in our daily trading setup. So now the floor is all yours, and definitely a question रह गया that I'll ask you in the end, that is our tagline, that market क्या लगता है. Okay, so that's really definitely asking you. Okay, so now the floor is all yours. You can share your screen, and I think it would be a great presentation because I've already seen that Rohan has shared some great insights in that, and it would be like a lot of learnings, a lot of practical learnings in the presentation. So I think everyone should be there till the end because there will be a lot of learnings and will be a lot of takeaways because Rohan will be showing it practically how you can do it. So be there. Right. Yeah. So I'm sharing my screen. Just let me know कि मेरा screen अगर आपको दिख रहा है तो. Sure. So is my screen At the visible? end. Yeah, it's visible. The Q&A will be at the end, but you can ask few questions if it's related to the presentation. But at the end, you will definitely get it. Yeah, your presentation is clearly visible, Rohan. You can go ahead. ओके फाइन. सो एज मतलब आपको पता है कि ये वेबिनार हार्मोनिक्स के ऊपर है एंड ऐसा ही अर्लियर सेट के हार्मोनिक का कोर टूल होता है फिबोनाची टूल्स. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. डायरेक्टली एबीसीडी या हार्मोनिक पे नहीं आएंगे. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. द फर्स्ट थिंग के हार्मोनिक रेशियोज कैसे आते हैं. आपके सामने ये स्लाइड दिखता रहेगा द फिबोनाची सीक्वेंस नंबर. तो दिस इज द थिंग. यहाँ से नंबर्स डिराइव होते हैं फिबोनाची रेशियोज के. दिस इज नथिंग बट इट्स लाइक ये जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है इट्स लाइक एडिंग इट्स प्रीवियस नंबर. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 1 1 2. सो 1 2 plus 1 comes to 3. 3 plus 2 comes to 5. So this is the origin of Fibonacci ratios. ये सीक्वेंस से ही फिबोनाची रेशियोज डिराइव हुआ है. सो आई होप आपने ये देख लिया है कि कैसे सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है. सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट्स नथिंग मच रॉकेट साइंस. बस प्रीवियस जो नंबर है उसको ऐड करके वी गेट द नेक्स्ट नंबर. So in Fibonacci, many would have heard के golden ratios होता है 61.8. तो this is very much important ratio in trading as well. In harmonic pattern के में भी बहुत important है. The thing कि इसको golden ratios क्यों कहते हैं. So as we see in this previous slide Fibonacci sequence, उसमें आप जो नंबर ऐड करोगे आफ्टर नंबर 3 एंड यू डिवाइड बाय इट. फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्टिंग से जाते हैं 1 डिवाइड बाय 1 जो यहाँ पे किया है कम्स टू 1 राइट. एंड उसके बाद 1 डिवाइड बाय 2 इफ वी डू इट्स 50%. then similarly as we go ahead 2 divided by 3 it comes nearly around 66.7. and from here if we continue dividing the preceding numbers, for example यहाँ पे if we take 3 divided by 5 it comes around 62% right. and after 5 divided by 8 it's coming to 62.5. and similarly हम अगर ये numbers divide करेंगे एक दूसरे से it mostly comes around 62%. तो this is the main reason it is called as a golden ratio. जैसे कि पहले बताया था कि 61.8 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज आल्सो फाउंड इन द ग्रेट पिरामिड्स. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा इन द नेक्स्ट पॉइंट के 61.8 आर फाउंड इन द ग्रेट पिरामिड्स एज वेल. एंड the another thing it's completely out of this box. If for example in Venus it takes 225 days to complete a revolution to the sun, same way the earth takes 365 to complete a revolution. and if we divide this number we got 62%. तो दिस इज ऑल्सो द वन मेन रीजन कि इसको 61.8 को गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्रेट जो इन्वेंशन हुआ है वर्ल्ड में या फिर आप इसका एग्जांपल ले लो विनस का अर्थ का रिवॉल्यूशन इट कंप्लाइज हुआ 62%. तो एंड दिस नंबर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग भी और हार्मोनिक्स में भी. एज वी प्रोसीड फर्दर यू विल कम टू नो कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है 61.8. दिस इज द फ्यू रेशियोज ऑफ फिबोनाची रेशियोज जो है
आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहिए तो इसको लिख लो, क्योंकि ये नंबर्स आपको बाहर करने पड़ेंगे एंड दिस इज द नंबर विल हेल्प यू टू प्लॉट द फिबोनाची हार्मोनिक रेशियो, हार्मोनिक पैटर्न्स। इसमें मैंने दो नंबर्स डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट इज हार्मोनिक रेशियोस एंड अदर इज अदर डिराइव्ड रेशियो। ये जो नंबर्स आपके सामने है चार, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक रेशियो बिकॉज ये जो नंबर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक रेशियोज। आपको ये जो नंबर दिख रहा है 61.8, 161, 78.6, दिस फोर नंबर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन हार्मोनिक पैटर्न। आपको दिखेगा कि जो पैटर्न्स है हार्मोनिक के, या तो ये पैटर्न्स यहाँ पे ये रेशियोज के वहाँ पे कंप्लीट होते रहेंगे, या फिर अमंग दिस फोर नंबर विल बी अ वाइटल कंडीशन फॉर अ वैलिड पैटर्न। And this harmonic ratio numbers are not given by me. This given by the inventor of harmonic patterns. This is Scott Scarney. ये जो हार्मोनिक रेशियोज जो नाम दिया है, टाइटल दिया है दिस फोर नंबर्स को, इज गिवन बाय द स्कॉट स्कारनी। सो इफ यू आर गोइंग टू लर्न हार्मोनिक तो ये चार नंबर को जरूर याद रख लेना एंड स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस in your trading as well to this four Fibonacci ratios. And apart from that, there are few other ratios which comprise in Fibonacci ratio. uh, Retracement ratios है 38.2, 50, 70.7 and 88.6. Generally आपने 70.7 नहीं देखा सुना रहेगा, but this plays an important role in harmonic pattern, mainly into ABCD and reciprocal ABCD. This four are called retracement ratios because ये starting point को break नहीं करते, means it's below the 100 ratios. The next is projection ratios, that is 1.13, 1.41, or 200, 2.24, 2.618 and 3.14 and 3.618. These are called the projection ratios. आगे जाके आपको समझ में आएगा कि मैं इसको प्रोजेक्शन क्यों कह रहा हूँ, दूसरे ऊपर के नंबर को मैं रिट्रेसमेंट क्यों कह रहा हूँ. दिस ऑल वी विल कवर एज वी प्रोसीड फर्दर. सो ये नंबर को भी आप चाहिए तो एक बार देख लीजिए. आई एम गिविंग यू से 30 seconds to 1 minute. यू कैन गो थ्रू दिस नंबर, और कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन श्योरली आस्क, बिकॉज this from here quite important thing will be starting, जैसे कि ये numbers हो गए, उसके बाद how to plot Fibonacci tools, retracement, projection. So we will be starting from here. Someone has asked, please repeat what is projection ratio. Projection ratios is like it's above 100%. मतलब I will you will come to know कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. Projection ratios as we'll proceed further. I have included over here Fibonacci retracement, Fibonacci projection. तो जब यहाँ पे हम आएंगे we will get to know. आपको समझ, तभी आपको समझा नहीं तो मुझे पूछ लेना. आई होप कि आपका डाउट तभी क्लियर हो जाएगा. Okay, perfect. I think Rohan, you can move ahead. Okay. Yeah. तो जैसे कि कहते हैं कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो सेम गोज विथ हार्मोनिक पैटर्न. ये ना ही होली ग्रेल है, ना ही 100% एक्यूरेसी रेशियोज है. हाँ, इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. सो बिफोर लर्निंग द हार्मोनिक ट्रेडिंग इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. सो यू कैन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन दिस. तो आई हैव एडेड फ्यू एडवांटेजेस. जैसे कि स्टार्टिंग के इसमें प्रेजेंटेशन ने बताया कि व्हाट इज द मेन हार्मोनिक पैटर्न क्यों अट्रैक्ट करता है. इट्स ऑफर अ ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी. समटाइम्स इट वुड बी अराउंड 1:3, 1:7, और कभी कभी मिल जाता है. so this is the very much important ratio, important advantage of harmonic trading. The next is this method completely fits into market abbreviation, that is buy low and sell high. आपने काफी बार मार्केट में सुना रहेगा, बहुत लोग कहते हैं कि कम भाव में लो और ऊपर भाव में बेच दो, बस यही है मार्केट, दूसरा क्या है. सो दिस abbreviation totally fits in harmonic trading. Coming to the next, harmonic patterns occur frequently on chart. This is also very much important. अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ टूल आपने स्ट्रेटेजी फॉर्म किया है, बट उसका कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है,
सो इट नॉट मच रिलायबल, राइट? आपको मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कौन से इवेंट में चल रहा है, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी उसका बहुत कम है। यू डोंट हैव मच एग्जाम्पल टू रेक्टिफाई कि कौन सा कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट important थिंग कि हार्मोनिक पैटर्न्स ऑकर्स ऑन फ्रीक्वेंटली ऑन चार्ट। आपको अगर आपने अपना आई ट्रेन कर लिया आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू कैन इजीली फाइंड ऑन द चार्ट्स। The fourth is this pattern can be analyzed in all time frame and all asset class. So if you are an intraday trader हो या आप swing trader हो या फिर positional trader हो, it can be seen on the all time frame from 1 minute to quarterly ले लो, monthly ले लो, from any time frame you can find this pattern in any time frame. But to be honest, I mostly look at the 60-minute and weekly chart and daily chart. Mostly मेरा काम यही 3 टाइम फ्रेम में होता है. I don't go beyond 60 minute to spot these harmonic pattern. And as it is written, it also analyzed can be analyzed in all asset class. So if you are a commodity trader, if you are a forex trader as well, you can see ये पैटर्न आपको वहाँ पे दिखेंगे and has a good accuracy ratio. Uh, Not only commodity and forex, but it can also be applied on Bitcoin, जो अभी काफी अच्छा limelight में है. So if you are also tracking Bitcoin, you can start analyzing, plotting harmonic patterns on Bitcoin as well. This method can be considered as a leading indicator. जैसे कि आपने सुना रहेगा RSI को सब लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, मूविंग एवरेज को लोग लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं. सो उसी हिसाब से हार्मोनिक पैटर्न्स आर कंसिडर एज अ लीडिंग इंडिकेटर, बिकॉज प्राइस वहां तक पहुंचने से पहले ही आपको ये दिखा देगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है. तो दिस इज द मोस्ट एडवांटेज कि आपको ये प्राइस वहां तक आने के पहले ही आपको बता देगा कि दिस माइट बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक, एंड वहां से ही प्राइस रिवर्स हो सकता है. And the last but not the least, this method can be considered as a systematic approach. अभी अभी कुछ सालों से आपने सुना रहेगा कि मतलब one should have a rule based trading, right? कि आपका अगर आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उसमें रूल होना चाहिए. यू शुड नॉट बी मतलब आप गए सीधा मार्केट में, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने ले लिया. दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू ब्लो योर अकाउंट. सो इफ यू आर अ रूल बेस्ड ट्रेडर, आप कुछ देख रहे हो कि कौन सा रूल बेस्ड मुझे ट्रेडिंग करना है, तो दिस हार्मोनिक पैटर्न जो भी मतलब पैटर्न्स है इसमें और वेरी मच रूल बेस्ड. एवरी लेग्स पे उसमें कंडीशंस दिए हैं, एंड अकॉर्डिंगली द पैटर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी वैलिड, एंड आपको तभी ही ट्रेड करना है. सो दिस इज द वेरी मच लेटेस्ट मतलब जो चल रहा है. यू कैन फिट इनटू दिस कि it is considered a systematic approach. Go with the rule based instead of just going the market with ऐसे ही जा रहे हो तो. And the most डिसअपॉइंटिंग पार्ट डिसएडवांटेजेस, तो मतलब काफी सुनने में अच्छा नहीं लगता कि अगर हम कर रहे हैं तो मतलब इट्स लाइक के सबके दिमाग में ऐसा है कि नहीं सब सही होना चाहिए, गलत रहेगा तो इट्स क्वाइट डिसहार्टनिंग. बट वी हैव टू फेस फॉर बेटर ट्रेडिंग. जैसे कि पता है कि देर आर मल्टीपल लेग्स इन्वॉल्व इन हार्मोनिक ट्रेडिंग. फॉर एग्जांपल इन ABCD देर आर 4 legs इन्वॉल्व, एंड इन 4 legs देर आर डिफरेंट रेशियोज और रूल्स काफी डिफाइंड है इसमें. सो ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट स्टार्ट, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वन बाय वन पैटर्न, इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू. The next much disadvantage is coding and automation is difficult in harmonic pattern. So जो कोडर्स है ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स बहुत डिफिकल्ट है टू कोड, बिकॉज इसमें काफ़ी लेग्स इन्वॉल्व है, एंड इट्स सब्जेक्टिव कि आप कौन सा स्विंग पकड़ रहे हो, कहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो. एंड the third disadvantage is के harmonic patterns mainly appear is in trending market and usually provide signal against the primary trend. So this is a disadvantage of the harmonic pattern. आपको जो भी पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिखेगा, इट वुड बी इन बिटवीन ट्रेंडिंग मार्केट्स. तो कभी कभी मतलब दिस थिंग हैज बीन टोल्ड बाय इन्वेंटर ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स. कॉर्ट्सकार ने भी मतलब बोल रहे थे कि
while trading this pattern, many times I used to think कि मतलब अरे market इतना strong है, should I take the short trade, should I enter the buy trade? And in that case I used to miss many wonderful trades. तो this is the human psychology. मतलब जैसे कि अभी market अच्छा खासा चल रहा है तो सब buy 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 बोल रहे हैं, और जैसे ही market समझ लो 2 दिन में 400 पॉइंट गिर गया तो everyone will start saying अरे टॉप बन गया, बेचो बेचो बेचो. So this is the human psychology, but you have to deal with it. Uh, the last point, it's not a disadvantage, सब में ही होता है. Anything you have to master, आपको practice करना ही पड़ता है. So it's require good practice to master these techniques. But it's not a disadvantage, but it's वही है कि ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा to train your eye. So these were few advantage and disadvantages. Now moving to the practical part. फिबोनाची टूल्स जो हम यूज करेंगे फॉर ट्रेडिंग एंड एनालाइजिंग हार्मोनिक पैटर्न्स. सो ये 3 जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको ये पता रहेगा तो ही आप एनालाइज कर पाओगे एंड यू कैन फाइंड हार्मोनिक पैटर्न्स. सो फर्स्ट वन इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, द सेकंड वन इज फिबोनाची प्रोजेक्शन, एंड थर्ड वन इज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन. सो आपको मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और रिट्रेसमेंट को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची क्या कहते हैं, और उसको कैसे कनेक्ट करना है. सो जस्ट लेट, मैं ट्रेडिंग व्यू अभी ओपन कर रहा हूँ. सो जस्ट लेट मी नो कि आप मेरा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या ट्रेडिंग व्यू का. सो कैन यू सी माय ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन? फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही दिख रहा है अभी तक प्रेजेंटेशन वाला. अच्छा, तो मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, आई थिंक सो. आई थिंक आपने डायरेक्ट प्रेजेंटेशन शेयर किया होगा, सो यू कैन शेयर द स्क्रीन. Just a second, hold on everyone. I think Rohan will start sharing in a minute. So everyone hold on for a minute. Rohan is connecting back in a minute and I'll start sharing his presentation again with some great practical examples. Okay. So he'll be back in a minute. Till then, I'll just give you a quick insight on what Rohan would be sharing. So he'll be sharing a lot of practical examples on Fibonacci and how Fibonacci retracements and extensions you can use practically on the charts. So he'll be showing us live on TradingView how you can plot it and how you can plot the harmonic patterns also, so that you can do it afterwards after the session today. Okay, so it will be a lot of practical stuff so that you can implement it directly into the markets. Okay, so just wait for a minute so that Rohan can join in and maybe we can start again. So he's here. Okay. Yes, Rohan, you can go ahead. Yeah, you can start with the presentation. Yeah. Extremely sorry, due to some net issue, I got disconnected. So I'm also again sharing the screen, and just let me see. So मेरा screen दिख रहा है अभी? Right, it's visible. Yeah. So we were on Fibonacci tools, projections, retracement कैसे draw करना चाहिए. It's quite important. So let make this webinar more interesting. If anyone has stock, so I can draw on that. If anyone interested to share their कि किस पे draw करना चाहिए, so I can draw on that.
या फिर निफ्टी पे ही करेंगे? We have more than 100 people, more than 100 अच्छा people on Zoom and lots of समझ people on गया, ठीक है, Facebook. तो मैं निफ्टी पे ही कर So लेता हूँ. yeah, start with Nifty. ओके ग्रेट सर. सो सो हम कैसे ड्रॉ करेंगे रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट दो टाइप के होते हैं, सपोर्ट ढूंढने के लिए और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, राइट? सो ट्रेडिंग व्यू में आप अगर जाओगे, मैं मोस्टली ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, सो आई हैव मच गुड ग्रिप ऑन दिस. सो अगर आपको फिबोनाची टूल यूज़ करना है तो जस्ट क्लिक ओवर हियर, वहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट एंड क्लिक ऑन दिस. You will able to plot both Fibonacci projection and retracement. So first let's start with Fibonacci retracement. So while drawing Fibonacci retracement, आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि काफी एकदम क्लियर कट स्विंग अवेलेबल हो. मतलब वाइल प्लॉटिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको दो ऐसे पॉइंट चाहिए कि जहां से आप दो पॉइंट कनेक्ट करोगे, राइट? सो आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे स्विंग हाई से, जैसे कि इन निफ्टी जैन में निफ्टी टॉप आउट हुआ था एंड यू कैन सी आफ्टर दैट काफी शार्प डिक्लाइन है एंड दिस फॉल कंप्लीटेड अराउंड दिस बॉटम, यू कैन सी. तो मतलब आप भी आप रिट्रेसमेंट ले रहे हो तो आप ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे फॉर बेटर रिजल्ट्स. तो जैसे कि अगर आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है इन रेजिस्टेंस इन रिट्रेसमेंट, सो यू विल गो फ्रॉम अप टू डाउन. तो यहाँ पे वी कैन सी के आपको रिट्रेसमेंट मिल गया. यहाँ पे फर्स्ट 38.2 रिट्रेसमेंट, काफी टाइम यहाँ पे रिट्रेस किया. देन यहाँ पे बहुत टाइम 50 पे टाइम बिताया. देन 61 पे रेजिस्ट किया. देन इट फाउंड सपोर्ट अराउंड 61%. देन इट मूव हायर टुवर्ड 78.6 एंड वैसे ही ये जर्नी कंटिन्यू होते गया. सो रिट्रेसमेंट रेशियोज विल ऑलवेज बी बिटवीन दिस टू. ए एंड बी का जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो उसके बीच में ही आपको मिलेंगे. एनीथिंग अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन नंबर, ठीक है? तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए ऊपर से नीचे कनेक्ट किया था, एंड सिमिलरली टू फाइंड सपोर्ट वी विल डू द ऑपोजिट. सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जाते हैं. सो वी कैन सी अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको क्लियरली दो स्विंग दिख रहे हैं टू फाइंड सपोर्ट. दिस इज जहाँ पे मेरा एरो है, दिट विल बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस कुड बी अवर second point. So this is two quite very important swing points for a trader. जो मतलब यहाँ पे ऐसा सप्लाई और ऐसा डिमांड फॉर्म हुआ था कि ये प्राइस फिर से आया ही नहीं. So these are the two important points. So taking connecting these 2 points for drawing retracement. So आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो सब नीचे आ गए. जस्ट 1 मिनट. तो अभी क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड जो रेशियोज दिख रहे हैं आपको. सो जस्ट नोट इट डाउन. दो चीज़ है, अगर आपको सपोर्ट देखना है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा लो से हाई होगा टू फाइंड सपोर्ट, एंड इन रिट्रेसमेंट दैट वुड बी ऑपोजिट. आप हमेशा हाई से लो कनेक्ट करोगे, ठीक है? रिट्रेसमेंट इज क्वाइट क्लियर नाउ. Yeah, I think perfect. या एंड प्रोजेक्शंस जैसे कि बताया कि प्रोजेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ही आपको मिलेगा. सो इन दिस केस आपको फिर से प्रोजेक्शन देखना है तो यू विल अगेन गो टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट. आप सेम वही दो पॉइंट कनेक्ट करोगे एंड इंस्टेड ऑफ रिट्रेसमेंट रेशियो you will mark other ratios which are above 100, which are about starting point. सो आपको ज्यादा नंबर्स ऐड भी करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू. यू हैव टू जस्ट टिक मार्क इट, ठीक है? सो इन दिस केस जैसे कि हमने पढ़ा था फिबोनाची प्रोजेक्शन रेशियोज होते हैं 113, 127, 141, 161 एंड 200. तो हम यहाँ तक ही पकड़ते हैं अभी.
सो यू कैन सी के मतलब अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मार्केट अभी अभी रिसेंट का एग्जाम्पल लेंगे तो मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, मतलब प्रीवियस कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं है, इट्स लाइक अनचार्टेड टेरिटरी। तो दिस इज द फिबोनाची टूल आपको ये बता सकता है कि कहाँ कहाँ पे आपको अपसाइड पे रेजिस्टेंस दिख सकता है। सो अगर आप यहाँ पे होते और यहाँ पे ही आई थिंक यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन या फिर कोई नया है अपसाइड का प्रोजेक्शन या अपसाइड का टारगेट डिसाइड करने के लिए। तो दिस इज वेयर प्रोजेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू फाइंड ट्रेडिंग टारगेट्स या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट लिस्ट अगर आप शॉर्ट किए हो या आपसे आपके अगेंस्ट चला गया है ट्रेड, तो आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो दिस इज वेयर इट्स कम इनटू प्ले। सेम गोज विथ प्रोजेक्शन। अगर आपको यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ढूंढना है, सो यू विल गो हाई टू लो टू फाइंड द प्रोजेक्शन। ओके, सो फॉर इन दिस इंस्टेंस यू कैन सी कि जैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ये ब्रेक किया, स्टार्टिंग पॉइंट ब्रेक किया, you can see the numbers are appearing over there. It is 1.13. 127 is quite important number in harmonic. So you can see यहाँ पे थोड़ा सा resist करके फिर से नीचे आया, then it broke it and it gone to the to test the next retracement level, that is 141. So this is how projection helps you. अगर आपको अगर ऊपर का देखना है अनचार्टेड टेरिटरी में, तो आप प्रोजेक्शन का यूज कर सकते हो। एंड सिमिलरली इन द ऑपोजिट साइड, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे का सपोर्ट या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने हैं, तो यू कैन mark from low to high. So for in this instance, let me find some important swing points. I think मैं अभी रिसेंटली का ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत क्लियर स्विंग्स विजिबल हो रहे हैं। दिस इज द क्वाइट परफेक्ट लो जहाँ पे बॉटम फॉर्म हुआ और बड़ा शार्प डिमांड हुआ, एंड दिस इज द पॉइंट वेर इट टॉप्ड आउट। सो इन केस ऑफ प्रोजेक्शन बिलो दिस स्टार्टिंग पॉइंट, तो यू कैन ड्रॉ फ्रॉम योर। अगर आपको डाउन साइड में सपोर्ट या डाउन साइड का टारगेट देखना है, सो यू विल गो फ्रॉम लो टू हाई। So this is how projection will help you to find supports and important levels. So you can see over here, यहाँ पे जो बॉटम फॉर्म हुआ था, इट वाज अराउंड 1.41 नंबर, और आपने देखा रहेगा कि ये इन इन मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं, आपको ये नंबर कभी सुने नहीं आया रहेगा 141। बट मैंने भी कभी सुना नहीं था, बट व्हेन आई गेट इंट्रोड्यूस टू हार्मोनिक, तभी मेरे ध्यान में ये 141 का नंबर आया। And it plays a very important role in ABCD and reciprocal ABCD. So is there any doubt in Fibonacci ratios and projection? So because after this there is a Fib trend based extension, तो वो मैं फिर start करूँ। It's quite complicated. So is there any doubt? Yash, किसको कुछ query है किसका? Doubt, I think you have explained it perfectly. खाली I think there were one or two queries also, and मेरा जो question है market क्या लगता है वो भी I think it would be answered if you can just show the projection in the current market. Correct. So मेरे हिसाब से 750 is the level which I'm looking for right now in Nifty, because वहाँ पे हार्मोनिक रेशियोज कोलाइड कर रहे हैं। सो इन दिस केस इन निफ्टी, इफ दिस वाज द पीक एट 28 जन, यहाँ पे बॉटम फॉर्म होता, राइट? सो यू कैन सी कि जो नेक्स्ट लेवल है अनचार्टेड टेरिटरी में, विच लेवल्स टू लुक आउट फॉर इज 13,750। सो दिस इज द जब भी हम कल बात भी करे थे तो मैंने ये बोला 750, तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट। मैं 13,750 को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा था। सो मार्केट क्या लगता है, तो मुझे ये लग रहा है कि 750 तक और जा सकता है। उसके बाद इफ वी कैन सी के 750 होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। If it holds above 750, then we can easily challenge the milestone of 14,000. So let's see. Okay, great. So I think you have answered both the queries. Great.
Let's move on to the last theory part या practically मैं यहाँ पे explain करूँगा, that is trend based Fibonacci extension. Before telling how कैसे इसको use करते हैं, इसका importance है कि this will help you to ट्रेड इन ए बी सी डी. जैसे कि आपने सुना रहेगा, अगर हार्मोनिक देखा है तो बहुत लोग कहते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी. So to find this ratio AB equals to CD, this will help you. This is nothing but addition of first two waves. तो आप आपको अगर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करना है तो गो ओवर हियर, एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे ही वो टूल अवेलेबल है, दैट इज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन. ओके, तो इसमें वी विल टेक द थ्री स्विंग्स. थ्री स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि प्रोजेक्शन और रिट्रेसमेंट में वी आर ओनली टेकिंग टू स्विंग्स, बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स विल बी इम्पोर्टेंट. तो इसमें ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची क्यों दिया गया है? व्हाइल कनेक्टिंग ए बी पॉइंट्स, वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, एंड कनेक्टिंग द सी पॉइंट इट शुड बी ए करेक्टिव वेव. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो दिस यू कैन सी कि काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था यहाँ से, एंड देन देयर वाज अ स्मॉल करेक्शन, राइट? So you can connect 3 points over here, A, B, and this is the C part. Got it? तो ये जो 100 आया है वो क्यों आया, कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन दैट. तो आपने यहाँ पे जो 2 पॉइंट मार्क किया A and B, ओके, एंड देन यू ड्रैग द थर्ड पॉइंट ओवर हियर, दैट दिस इज द C पॉइंट, राइट? सो ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर रहा है ये पॉइंट से. मतलब फॉर एग्जांपल इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूंगा कि ये ए और बी पॉइंट 100 पॉइंट्स है, ओके, ये 0 पे बॉटम बनाया और ये 100 पे टॉप बनाया. सो दिस इज द 100 पॉइंट डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट ये 30 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ विच कम्स अराउंड 70. फाइन. सो ये 1 कैसे आया? ये जो हम लोग का 100 पॉइंट्स का डिस्टेंस था, इट विल कैलकुलेट ओवर ईयर, मतलब यहाँ से वो कैलकुलेट करेगा, दैट इज 70 से वो 100 पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा, विच विल कम अराउंड 170. सो ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो या इट्स तो जैसे ही प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन में दो टाइप थे, बुलिश एंड बेरिश. तो इसमें भी अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो दिस इज हाउ यू विल प्लॉट, एंड टू फाइंड सपोर्ट और या फिर की सपोर्ट लेवल, तो आप उसका ऑपोजिट करोगे. पहले जैसे कि यहाँ पे आपने अप मूव देखा था, वहां पे आप डाउन मूव देखोगे, एंड देन अ स्मॉल पुल बैक. सो इन दिस केस लेट मी टेक टू द नेक्स्ट चार्ट. यहाँ पे मुझे इतना कोई क्लियर स्विंग नहीं दिख रहा है, तो लेट्स मूव टू निफ्टी बैंक. फॉर इंस्टेंस अगर आपको नीचे से जाना है, सपोर्ट देखना है, तो दिस इज द प्लेस वेर यू कैन अप्लाई दिस टूल. फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ पे जो टॉप फॉर्म हुआ था और एक डिक्लाइन शार्प हुआ था, देन देयर वाज अ स्मॉल पुल बैक, एंड यू कैन ड्रॉ ओवर हियर. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल अगर आपको प्लॉट करना है ऑन द डाउन साइड. तो दिस इज हाउ यू विल लुक फॉर एक्सटेंशन ऑन द डाउन साइड. फर्स्ट यू विल लुक फॉर अ डाउन ट्रेंड, मतलब जो डिक्लाइन हुआ था, देन अ पुल बैक, देन अगेन वहां से अगर प्राइस फॉलो हो रहा है तो यू विल अकॉर्डिंगली कम टू नो कि कहाँ पे 1 आ रहा है. उसमें भी देर आर 4 नंबर्स, बट यू विल मोस्टली फोकस ऑन ओनली 1 नंबर, दैट इज 100. एंड फॉर बेटर क्लैरिटी मैं और एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ. या वी कैन सी ओवर हियर, दिस इज द वेरी क्लियर एग्जांपल. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे स्विंग हाई था, देन अ शार्प डिक्लाइन, एंड देन इट मूव ओवर हियर. सो अगर आप ये देख रहे हैं आपको एक्सटेंशन डालना है, तो यू विल कनेक्ट दिस फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी द बी पॉइंट, एंड दिस विल बी द सी पॉइंट. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल प्लॉट द एक्सटेंशन. और ये आपको सिर्फ अभी के लिए ए बी इक्वल्स टू सी डी जो पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं,
यही तब भी आपको ध्यान देना है कि यू यूज दिस पैटर्न, you use this tool. So I hope Fibonacci tools were quite clear. Shall we move to this PPT again? या आई थिंक इट इज परफेक्ट, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का समझाया, तो आई थिंक दैट इज फाइन। ओके, मेरा PPT दिख रहा है क्या? नहीं, अभी भी वही आपका ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है। हार्मोनिक दिख रहा है क्या? अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं दिख रहा है। आई थिंक आप स्टॉप शेयर करके वापस स्टार्ट करोगे तो आई थिंक या नाउ इट्स विजिबल। नाउ इट विजिबल, राइट? या ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट एंड नाउ मूविंग टू द हार्मोनिक। हार्मोनिक में काफ़ी डिफरेंट टाइप के पैटर्न है विद डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट रेशियोज। तो जस्ट कॉमन नेम्स काफ़ी फेमस है और काफ़ी एक्यूरेट है। स्टार्ट विथ ABCD पैटर्न, देन कम्स टू क्वाइट गाटली पैटर्न। नाम काफ़ी विचित्र है बट उनका काम भी इतना अच्छा ही है। So after Gartley, there is a bat harmonic pattern, then butterfly, crab, shark, and cipher. These few harmonic patterns are quite familiar in the harmonic world. So अगर आप इसमें से अगर 3-4 भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, इट्स मोर देन इनफ। सच बताओ तो मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल मेरा फेवरेट पैटर्न ABCD है। मेरा मैं जो भी वर्क करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, मैं मोस्टली एक ही पैटर्न को ध्यान देता हूँ, ABCD पैटर्न। एंड उसके बाद आई मूव टू गार्टली एंड देन क्रैब। सो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सीखने, सारे मास्टर करने, हाँ, बट नॉलेज के लिए यू कैन गो विथ ऑल। बट वाइल जैसे कि एक कोड भी है, टू मेक अ लिविंग इन स्टॉक मार्केट only one pattern is required. So in that quote I fit AB equals to CD pattern for me. So these are the few types of harmonic pattern. And after that आज हम focus करेंगे mostly AB equals to CD pattern पे. uh, So going in more detail, there are also different types of ABCD. That is basic ABCD जो आज हम cover करने वाले हैं. And then comes to reciprocal ABCD, and the next is alternate ABCD. While trading also, if you want to go ahead and learn more harmonic patterns, I would advise you can go with reciprocal ABCD, and you also can avoid alternate ABCD pattern. So let's start with AB equals to CD, the basic pattern. So it is also called as lightning bolt pattern because ये sort of उसका जो structure है वैसा है, sort of zigzag। आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा दो structures add किए, chart patterns, that is bullish and bearish. So this is how AB equals to CD looks. एंड ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि कैसे आपको स्विंग कनेक्ट करना है, कैसे AB इक्वल्स टू CD का जो फिबोनाची टूल्स में हमने देखा था वो कैसे अप्लाई करना है. So going to practical, let's get words with first this theory part. AB equals to CD pattern is a reversal pattern that helps to identify reversal in price from bullish to bearish and vice versa. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is the bullish structure but price decline हो रहा है, right? But in harmonic patterns, कौन सा भी आप harmonic pattern ले लो, your trade position will always be at D, जिसको हम PRZ भी कहते हैं. I will get into details जब हम practically देखेंगे. So आप कौन सा भी पैटर्न सीख रहे हो, डोंट जंप इन सी प्रीएम्प्ट करने के लिए कि ये डी होगा. ऑलवेज एट फर्स्ट टेक ट्रेडिंग डिसीजन या एंट्री या एग्जिट करना है, आप हमेशा डी के पॉइंट के पास ही करोगे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन हार्मोनिक पैटर्न. सो तो फॉर बेरिश इट विल बी ऑपोजिट. ये पैटर्न बेरिश होगा, प्राइस नीचे से स्टार्ट होगा और खत्म होगा पैटर्न ऑन द हाई. And bullish will be quite opposite. It will start from the high and end at the bottom. I hope it's clear. Second point भी वही है. AB equals to CD is 4-point harmonic pattern. Starts with A and ends at D. So our main जो हमें पैसा लगाना है या कुछ फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग करना है will always be at D point. AB equals to CD है. A B C जो ये दूसरे जो तीन लेग है, these are the conditions to be fulfilled and trading decision is always taken at point D.
अभी आते हैं रूल्स पे। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, इट्स अ सिस्टमैटिक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग। काफी रूल्स है इन एवरी डिफरेंट पैटर्न। देयर आर रूल्स डिराइव बाय द आर्किटेक्ट ऑफ हार्मोनिक पैटर्न, दैट इज स्कॉट्स कार्नी। तो इसमें रूल्स ये है कि दिस ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों सेम लेंथ के होने चाहिए। जैसे कि वहां पे प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये ए बी लेग 100 पॉइंट का है, तो ये सी डी लेग जो फॉर्म हो रहा है, इट शुड बी ऑल्सो नियरली अबाउट 100 पॉइंट्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यहाँ से 100 से स्टार्ट हो रहा है and its B point completes here 80, so it takes around 20 points, right? And यहाँ पे एक छोटा सा pull back आता है and move towards 90, so यहाँ पे 20 points and taking take now 20 points from this 9 C point, that is 90 level, so it should get completed around 70 level के आसपास। ज्यादा imbalance नहीं होना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स ऊपर नीचे चल जाएगा, यू कैन कंसिडर अराउंड 20 पॉइंट्स है तो यू कैन कंसिडर अराउंड 23 17। बट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ तो उसमें एक्यूरेसी भी मतलब आपका ये कम होते जाएगा। सो मोर द परफेक्ट द पैटर्न, हायर विल द प्रोबेबिलिटी। सो दिस कीप इन माइंड। यहाँ पे लिखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट, इट शुड बी ए बी इक्वल्स टू सी डी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। प्राइस तो हमने देख लिया, अगर ये 20 पॉइंट है तो ये सी डी लेग भी 20 पॉइंट होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे टाइम सिमेट्री। टाइम सिमेट्री इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये टाइम को भी कंसीडर करता है। आपने देखा रहेगा कि बहुत लोग टाइम से भी प्रोजेक्शन करते हैं। आप अगर अलर्ट वेव को फॉलो कर रहे हो किसी बंदे को, तो वो टाइम भी इसमें इंक्लूड करेगा। So this is the only one pattern which take time into consideration. So this is one of the best advantage. ये price को भी consider करता है और time को भी consider करता है। So जैसे कि हमने price का example लिया, वैसे ही मैं time symmetry को कैसे कहते हैं वो बता देता हूँ। So for example, while completing this 20 points, मतलब ये swing जो complete हो रहा है, it took around 10 days, okay? So A B जो leg form हुआ है उसको 10 दिन लगा। एंड सिमिलरली जो सी डी लेग जो फॉर्म हो रहा है, इट शुड बी कंप्लीटेड नियरली अराउंड 10 डेज। वैसा नहीं है कि डॉट 10 दिन ही होना चाहिए, 8 दिन भी चल जाएगा, 12 दिन भी चल जाएगा। सेम गोज विथ मतलब 19-20 चल जाएगा। बहुत ज्यादा इम्बेलेंस रहेगा तो इट्स बेटर टू इग्नोर। सो दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल एनालाइजिंग ए बी इक्वल्स टू सी डी। एक प्राइस सिमेट्री हो जाएगा और एक टाइम सिमेट्री, ये दोनों आपको एक दो रूल समझ के चलना है। एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन। इसमें बहुत मायने रखेंगे। इट इज द थर्ड रूल एंड द लास्ट रूल कि ये आपको इसमें देखना रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, ये ए बी हो गया। यहाँ पे जो एक आपको यहाँ पे स्विंग दिख रहा है बुलिश में, थोड़ा पुल बैक आ रहा है, ओके। यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए फ्रॉम 38% टू 88.6। और टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से पैटर्न रिट्रेसमेंट होने, कौन कौन से रेशियोज तक सी पॉइंट रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो आगे कैसे प्रोजेक्शन उसका काउंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए बी का रिट्रेस हो रहा है 38%, एक सी कंप्लीट हो रहा है 38.2 रिट्रेसमेंट पे, तो सामने जो प्रोजेक्शन है इट शुड बी 224 टू 261। ये जो नंबर्स है उसके बीच में ही आने चाहिए। either it should complete around 224 or 261 if the retracement is 38.2। एट स्टार्ट आपको लगेगा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट स्लो एंड स्टडीली आप जितना इसको रीड करेंगे आपको इतना ही इजी लगेगा। इट्स क्वाइट इजी, बट एट स्टार्ट जैसे कि आप नया स्टेप लोगे तो आपको हमेशा टफ ही लगेगा। तो सेम गोज विथ हार्मोनिक एज वेल। जैसे जैसे आप अपना स्टेप बढ़ते जाओगे, इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सो एट स्टार्ट गिव मोर फोकस। कंफ्यूजिंग रहेगा तो यू कैन आस्क द डाउट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन द लास्ट, आपका क्या रूल होना चाहिए। सो इन दिस 4 पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी, ओके। सो ये जो सी पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो रहा है, इट कैन बी बिटवीन 38.2 और 88.6, गॉट इट। या फिर 38.2 हो रहा है, या फिर 50 हो रहा है, या 61 हो रहा है, या 70 हो रहा है। यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है तो उसका मेन पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। दिस अदर थंब रूल रेशियोज, अगर सी पॉइंट रिट्रेस हो रहा है 50 पे, तो बी सी का
जो प्रोजेक्शन है जो डी के पास कंप्लीट होगा इट शुड बी 2.00 एंड सिमिलरली इफ इट कंप्लीट्स अराउंड 61.8 आपका प्रोजेक्शन आएगा 161.8 पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था फिबोनाची प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक्स के लिए। अगर आपने वो समझा रहेगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मैं क्या अभी कह रहा हूँ। तो दिस आर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है। अगर आपको C.70 8.6 पे मिल रहा है तो डी कहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए? इट शुड बी around 127, ना 141, ना 161, ना 224, only 127. And this also rules are not derived by me. It has been derived by the inventor of harmonic patterns, that is Scott Scarney. So these are the 6 ratios. यहाँ पे C point complete हो रहा है, उसके सामने प्रोजेक्शन यहीं पे कंप्लीट होना चाहिए। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। आपको चाहिए तो मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा था while taking the example of this pattern जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दिस इज बलरामपुर चीनी, M&M फाइनेंस और रेमको सीमेंट। दिस इज द बेरिश ABCD pattern and these two are the bullish harmonic pattern. Should I practically Yes, show? I think that would be that would make things more clearer. I think आपने Yeah, बहुत easily समझाया, but practically एक बार आप दिखा दोगे तो that would be yeah, much that will be quite much clear. right. सो प्रैक्टिकली वाइल प्लॉटिंग ABCD आपको मैं कैसे मैं वर्क करता हूँ ABCD पे, कैसे फर्स्ट किसको प्रेफरेंस देता हूँ, आई विल एग्जैक्टली शो ओवर हियर एज वेल। तो अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो यू कैन इजीली कम टू नो कि क्योंकि ये थंब रूल है रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन, ये दिस आर द थंब रूल। अगर 61 हो रहा है तो सामने 161 ही आना चाहिए। या यू कैन अगेन सी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Right, it's visible. ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो AB इक्वल्स टू CD बलरामपुर चीनी में फॉर्म हुआ था, काफी सॉर्ट ऑफ परफेक्ट हार्मोनिक पैटर्न था। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको 4 स्विंग दिखेंगे, दैट इज A, B, C एंड D। ठीक है, आपको मोटा मोटी देख के पता चल गया कि ये जिगजैग सॉर्ट ऑफ है। तो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि आप इसमें जाओगे, यू विल फर्स्ट क्लिक ऑन फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले आप चेक करोगे कि ये जो 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो रहा है इट फिल्स द कंडीशंस ऑफ AB इक्वल्स टू CD और नॉट। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपने देखा, दिस इज AB पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया एंड नाउ कनेक्टिंग फ्रॉम C एंड D। सो यू कैन इजीली सी कि you can clearly see के AB equal to CD यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट? सो ये हो गया एंड मैं उसके बाद मेरा आदत हो गया कि मैं एक बार AB इक्वल टू CD देख लेता हूँ, उसके बाद मैं डेज काउंट कर लेता हूँ कि डेज अगर रहे तो ही मैं ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। सो टू काउंट द डेज देर इज एन ऑप्शन इन दिस ट्रेडिंग व्यू, यू कैन क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे आपको दिखेगा डेट रेंज, यू कैन सी ओवर हियर डेट रेंज है, तो उस पर आप क्लिक करोगे। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम को एक पिक करना है, दैट इज AB का जो लेग फॉर्म हुआ है टॉप से लेके बॉटम, वहां पे आपको सिर्फ क्लिक करना है तो इट विल कैलकुलेट कि कितना बार्स मैंने सिलेक्ट किया है। सो ओवर हियर इट इज 14 बार, करेक्ट? एंड सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो C पॉइंट का फॉर्म पिक फॉर्म हुआ था और ये D पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दिस इज द लोएस्ट ऑफ D पॉइंट, राइट? तो दिस ऑल्सो अकाउंटेड अराउंड 14 बार्स। ये 14 बार्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे AB का एंड CD ऑल्सो एग्जैक्टली टू 14 बार्स। इट्स नॉट कि मतलब एवरी टाइम इतना ही परफेक्ट रहेगा, इट कैन बी 12, 13, मे बी 15, 17, बट जितना क्लोज रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा एंड यू कैन टेक द रिस्क अकॉर्डिंगली। तो दिस इज द फर्स्ट टू थिंग्स आई चेक इन ABCD। एक तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से कि ये AB इक्वल्स टू CD है क्या। ठीक है, अगर ये दो मैच हो गया AB इक्वल टू CD, देन आई मूव टू बार्स काउंट करता हूँ टाइम और प्राइस सिमेट्री हो रहा है क्या। अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है इसमें भी, देन आई मूव टू एवरेजेस फिबोनाची रेशियोज। सो
So our next third last step रहेगा to check the Fibonacci retracement. यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट अगर कनेक्ट करूंगा तो सी कितना रिट्रेस हो रहा है. ओके, तो मैं ये सारे पहले अनटिक कर देता हूँ. सो यू कैन सी ओवर हियर 61 चेक कर रहा हूँ तो 61 को क्रॉस कर रहा है, तो आई विल अगेन अनटिक एंड लुक फॉर 78.6. तो यू कैन सी 78.6 पे सॉर्ट ऑफ उस पर ट्राई किया, बट इट फेल टू सस्टेन एंड वापस डोजी फॉर्म करके सेलिंग डिक्लाइन हुआ. ठीक है, सो एज आई सेड कि ये काफी थंब रूल सॉर्ट ऑफ है, तो आपको ये बाहर रखना पड़ेगा. सो इन दिस एग्जांपल इफ इट कंप्लीट्स अराउंड 78.6 एज पर द कंडीशन, ये जो डी पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इट शुड बी 127 प्रोजेक्शन ऑफ बीसी लाइन. सो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे. वी विल कनेक्ट फ्रॉम बी टू सी. ओके, एंड वी विल सी कि अगर 127 भी वहां पे आ रहा है क्या. अगर 127 भी वहां पे आ रहा है, देन इट्स perfect AB equals to CD pattern and you can trade this pattern. So just see over here, perfectly exactly यहाँ पे कंप्लीट हुआ पैटर्न एंड यू कैन सी द रैली फ्रॉम हियर. बहुत ऐसे जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपको इतना ही रैली मिलेगा, बट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट कंडीशन कैसा है, ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. एट दैट टाइम जब ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, द स्टॉक वाज क्वाइट इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. तो now we will again add AB trend based Fibonacci extension over here. यहाँ पे अपना ट्रेड पोजीशन फॉर्म होगा. वी विल टेक द ट्रेड व्हेन इट टचेस दिस टू लाइंस. आपने हार्मोनिक में देखा रहेगा कि PRZ करके एक टर्म होता है. PRZ को हम कहते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, एंड इट ऑलवेज फॉर्म एट डी पॉइंट. जहाँ पे पैटर्न कंप्लीट होगा वो हमेशा वहीं पे फॉर्म होगा. तो दिस इज द, आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रहा है राइट, दैट इज 100 AB और CD का लाइन दिख रहा है 100 का, एंड द नेक्स्ट वन इज 127 जो कि BC प्रोजेक्शन था एज पर दी रिट्रेसमेंट था 78.6 का, इसलिए हमने 127 लिया. सो ये दो बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज वेयर वी विल टेक द एंट्री पोजीशन. ठीक है, हमारा एंट्री हमेशा ये दो जो डिफरेंसेस है PRZ जो हम कहते हैं उसके बीच में ही होगा. आई होप इट्स क्लियर. Yes, I think it's clear, Rohan. और एक चार्ट में अगर आप दिखा दो, आई थिंक वन मोर एग्जांपल, आई थिंक दैट वुड परफेक्टली चलेगा. मैं और एक बुलिश दिखा देता हूँ और एक बुलिश दिखा देता हूँ, एंड देन वी कैन गो फॉर उसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा. सो नेक्स्ट आई विल मूव टू M&M फाइनेंस. दिस इज M&M फाइनेंस. just let me take NAC. ये भी काफी परफेक्ट टाइम पे फॉर्म हुआ था, एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम लॉन्ग, मैंने ये एग्जैक्टली बॉटम पे ट्विटर पे शेयर भी किया था कि ये ABCD पैटर्न कंप्लीट हुआ है एंड वी कैन सी सम टर्न अराउंड. तो यू कैन सी कि यहाँ पे परफेक्ट बॉटम प्लेस हुआ है और यहीं पे आपको चार वेव सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग ये सॉरी बोल्ट जैसा व्यू दिख रहा है, लाइटनिंग बोल्ट A B C and D सॉर्ट ऑफ zigzag राइट. मैं इसको और जूम कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये भी बुलिश पैटर्न ही है. आई होप इट्स क्लियरली विजिबल नाउ. सो वापस वही प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर टू प्लॉट दी टू चेक इट्स ABCD. पहले आपको यहाँ पे आंख से दिख जाएगा कि ये 4 पॉइंट्स का वेव है, दैट इज A B C and D. एंड नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट. फर्स्ट वी विल चेक कि ये AB इक्वल्स टू CD है. अगर ये है तो हम अपना प्रोसेस आगे करेंगे या फिर इसको यहाँ पे ही अवॉइड कर देंगे. सो ओवर हियर यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली AB and CD. यहाँ पे आपको 100 का रेशियो दिख रहा है. So the first condition is fulfilled. It is AB equals to CD. Okay, I'm deleting it. Now the next step is to find कितने bars में complete हुआ है. So you can check over here. ये AB
था यहाँ पे, it took 5 hours to complete AB leg. Similarly CD से हम काउंट करेंगे कितना बार फॉर्म हो रहा है, तो you can see it took 6 bars over here. Got it? तो सेकेंड कंडीशन प्राइस एंड टाइम सिमेट्री है, तो इसमें we can move further. The next and the last condition fulfill होना चाहिए retracement and projection का. So taking the AB retracement for C point, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कितना रिट्रेस हो रहा है. This also perfectly hit the 78.6 retracement ratio. So हमें पता है अगर 78.6 पे C point complete हो रहा है तो D point कितना होना चाहिए. It should be 127, correct? So we will take the projection connecting from B to C. हम लोग यहाँ पे 127 पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं वो एक बार देख लेंगे. Here it is 127. You can see over here it perfectly वहाँ पे टच किया and then the pattern मतलब ऐसा परफॉर्म किया कि ये अप ट्रेंड में ही था. So to find PRZ, we will take AB equals to CD. So ये दो पॉइंट का जो डिफरेंस है that will be our potential reversal zone, that is PRZ, और वहीं पे हम एंट्री करेंगे. So you can see over here exactly ये दो पॉइंट को हिट किया एंड देन पैटर्न रिवर्स हो गया, काफी बढ़िया अनफोल्ड हुआ. तो दिस वर द टू एग्जांपल ऑफ बुलिश. आपको मैं और एक बेरिश का दिखा देता हूँ. आई होप बुलिश क्लियर है. I think it's perfectly clear. Still any doubts are there, तो Yeah. last में I think they can हाँ ask. ठीक है, लास्ट में ले लेंगे. Right. सो जैसे कि बुलिश हमेशा हाई टू लो होता है, हमेशा आपको नीचे फॉर्म होते हुए दिखेगा, और एंड जहाँ पे ऑपोजिट होगा ये हमेशा कंप्लीट होगा हाई पे और फॉर्म होगा लो से. ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिकली मतलब ऑन द रियल टाइम मैंने शेयर भी किए थे ट्विटर पे. सो इसलिए मुझे ये सब याद है, इसलिए मैं यही चार्ट्स ले रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं अभी आफ्टर मार्केट में देखने बैठा था. कि मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया था, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ. सो यू कैन सी दिस इज द 4 पॉइंट A, B, C and D, करेक्ट. सो यू विल फर्स्ट see AB equals to CD है क्या. If it's there, you will move ahead. So you can see exactly AB equals to CD. यहाँ पे ही connect हुआ. And after same process we will follow for bearish as well. अगर AB equal to CD form हो रहा है, then the next step is to check the dates. Days कितना लिया उसने AB और CD complete करने के लिए. So ticking over here, it took 17 bar AB complete करने के लिए. And similarly, if you will take over here, it took around 15 bars, right? तो मोटा मोटी 19-20 है, बट एज वी सेड कि वी कैन कंसिडर दिस ज्यादा इम्बैलेंस नहीं है, एक दो दिन का ऊपर नीचे चल जाएगा. सो टू कंडीशंस आर मेट, करेक्ट. ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया और टाइम भी मैच हो गया इसमें. सो द फास्ट लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज टू टेक द रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन. अगर ये कंप्लाई करे तो वी कैन टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली. तो फर्स्ट ए बी का हम लेंथ लेंगे और देखेंगे कि सी पॉइंट कहाँ कंप्लीट हो रहा है. सो इन दिस केस 78.6 काफ़ी लंबा है. 61.8 पे एग्जैक्टली कंप्लीट हुआ. यू कैन सी ओवर हियर ये पूरा डिक्लाइन था, सी पे कंप्लीट हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ. सो अगर 61.8 पे रिट्रेसमेंट खत्म होता है तो द थंब रूल इज वी आर टू सी द प्रोजेक्शन जो हम करेंगे वो 161 पे खत्म होना चाहिए. द डी पॉइंट शुड बी कंप्लीट अराउंड 161. So the last point is we are taking the projection and we will be marking 161.8 retracement. So here it is 161.8 and you can see AB equals to CD भी यहाँ पे complete हुआ था और ये भी exactly यहीं पे आ रहा है. And this is the final step to plot AB equals to CD. ठीक है, you can see कि कितना closely है ये, कितना close PRZ अपना फॉर्म हुआ है. इट्स लाइक एग्जैक्टली यहीं पे मैच हुआ है. एंड
the way it has fallen after completing the AB equals to CD pattern, it's quite impressive. मतलब ऐसा था कि इतने बड़े बड़े कैंडल्स थे. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द AB इक्वल टू CD पैटर्न, यू विल लाइक ये यहाँ से नहीं रुकेगा और कल चलते जाएगा. बट इफ यू आर फॉलोइंग हार्मोनिक पैटर्न लाइक AB इक्वल टू CD, यू वुड बी कॉशियस अराउंड दिस लेवल. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यहीं पे शॉर्ट करो, एटलीस्ट यू विल बी कॉशियस और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे. So this is how you can plot AB equal to CD in मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ वही मैंने आपको शो किया है. सो you can follow this process. First take AB equal to CD, then count the days, and then take projections का जो हमने thumb rule का डिस्कस किया था. First take retracement and lastly take projection. सो आई होप इट्स क्लियर. हम क्विकली इस पे आ जाते हैं. अपना एंट्री तो पता चल गया, PRZ पे होगा. स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा, तो मैं हम क्विकली उस पे डिस्कस कर लेते हैं. सो मूविंग बैक टू PPT. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yeah, it's visible. ओके. सो एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट. एंट्री तो पता चल गया आपको कहाँ पे करना है, एट D पॉइंट, दैट इज अवर PRZ. स्टॉप लॉस काफी सब्जेक्टिव है. ना ही ऑथर ने इतना क्लियरली बताया है, ना ही कहीं और आपको दिखेगा इतना क्लियरली. सो टू बी स्पेसिफिक, हमें हमारा कहाँ पे मिस्टेक एक्सेप्ट करना है कि दिस मार्केट इज लाइक सुप्रीम. हमें वी हैव टू कवर द ट्रेड इफ इट्स गोइंग अगेंस्ट अस. सो टेकिंग द एक्सपीरियंस इनटू काउंट, मैंने यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस यूज करके ही ये नंबर यहाँ पे डाला है. एंड आई एम फॉलोइंग दिस रिगरसली. मैंने बुक में भी यही लिखा है और मैं पर्सनली भी ट्रेड करता हूँ तो मैं यही फॉलो करता हूँ. So stop loss would be 1.5% on closing basis, and in absolute term, it will be maximum 3% from the PRZ. ठीक है, हमारा maximum loss होगा would be 3% from the PRZ on the maximum absolute basis. और closing basis पे अगर आप कर रहे हो तो अगर PRZ के 1.5% के ऊपर क्लोज हो रहा है तो it's better to exit the next day. और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट काफी ट्रेंडिंग है और पैटर्न तभी फॉर्म होता है ट्रेंडिंग पे ही. तो अगर ये 3% के ऊपर जा रहा है PRZ से, तो इट्स बेटर टू कट द ट्रेड एंड टेक अ स्मॉल लॉस एंड मूव अहेड. सो ये नंबर मैंने ऐसे ही नहीं डाले. मैंने देखा है कि अगर ये 3% के ऊपर चला जाता है तो इट्स लाइक कि जो पैटर्न है वो फेल होके द ट्रेंड कंटिन्यूज ऑन द सेम डायरेक्शन. और कभी कभी अगर 1.5% के ऊपर क्लोज होता है तो इट्स लाइक कि इट्स बेटर टू सरेंडर द ट्रेड और टेक अ स्मॉल लॉस एंड मूव आउट. ठीक है, ये स्टॉप लॉस का है कि कैसे आपको क्या स्टॉप लॉस. यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट, बट फॉर मी दिस सूट्स मी वेल. 1.5 on closing basis and 3% maximum from a PRZ. And for target, टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे. द मिनिमम इनिशियल टारगेट विल बी 38.2 से लेके 50% ऑफ CD लेग. जो लास्ट लेग फॉर्म होता है उसका हम रिट्रेसमेंट लेंगे एंड इनिशियल टारगेट विल कीप अराउंड 38.2 और 50% के आसपास हम काट लेंगे. पार्शल तो वहां पे बुक कर ही लेना है. एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेल फॉर एक्सटेंडेड टारगेट. if it continues in our favor, we can look for 62%, 78.6. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि C पॉइंट और D लेग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आ जाता है, जैसे कि हमने लास्ट देखा था. इन ऑल थ्री सॉर्ट ऑफ एग्जांपल वी सी के मतलब बहुत अच्छा मूव दे दिया था. सो इन दैट केसेस वी कैन गेट द चांस ऑफ हिटिंग द मैक्सिमम टारगेट एज वेल. सो क्विकली दिस इज द, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ क्विकली. व्हाट विल बी अवर बाइंग एंट्री पॉइंट. वी विल ऑलवेज बाय नियर PRZ, that is D point. Our stop loss would be 1.5% of closing basis from PRZ, and absolute term में maximum 3% we will risk our capital. Targets will be as यहाँ पे लिखा है 38.2 and 50% of CD leg. Last leg का retracement लेंगे from low to high in case of bearish ABCD. And this is the initial target levels, and extended can be 62% and 78.6 and even 100% of CD leg. हाँ, सो क्विकली एक बार लास्ट मैं बता देता हूँ कि क्या कंडीशंस फॉलो करने हैं.
it should follow the reciprocal relationship Fibonacci ratio, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल BC रिट्रेस हो रहा है 61 पे, तो CD भी कंप्लीट होना चाहिए 161 ऑफ BC प्रोजेक्शन. एंड द लास्ट इज सेकेंड इज AB इक्वल टू CD रेशियो फॉर्म होना चाहिए विच शुड coincide with reciprocal relationship ratio. For better results, AB equal to CD must be in sync with a ratio and time, जो हमने देखा था वहाँ पे 10 bars हो रहा है, 20 bars हो रहा है. The second is AB equal to CD should have a impulsive price structure, मतलब वैसा कि impulsive in the sense काफी बड़े बड़े कैंडल होने चाहिए. अगर ये AB का लेग आपको दिख रहा है अपसाइड में है तो बुलिश कैंडल काफी दिखने चाहिए. This is what it's called impulse. And the last thing is PRZ of the pattern should coincide with other technical tools like previously कोई support दिख रहा है, कोई resistance है, कहीं पे gap area form हो रहा है, कहीं पे moving average आ रहा है 100 days 200 days और वहीं पे PRZ collide हो रहा है. It will be an added advantage for this signal. So these were the example I've added, and this is sort of disclaimer जो मैंने image लिए है. It might be from charting software, different links and websites. And you can follow me over Twitter, can check my blog, and if you have any query can surely mail me on this email ID rohanshah619@gmail.com. Yeah. Great. I think Rohan, you're done with your presentation. या अगर किसको और आगे का देखना है, आगे का बुक पढ़ने की इच्छा है तो आई कैन श्योरली शो दैट कहाँ पे मेरा नाम क्या है बुक का. कैन यू सी माई स्क्रीन? No, Rohan, we cannot see. Okay, just hold on. Yeah. Yeah, it's available on Amazon and Flipkart. Okay. So if you want, you can. This is the name of the book, Trading Harmonic Pattern with Technical Analysis. इसमें मतलब I took almost 10 to 12 months ये book लिखने के लिए and have tried to write in a very simple manner. जितना experience जितना सीखा था मैंने उतना easy language में put on करने का try किया है. Great, great. So you can go through this book if you want for further studies. दूसरे patterns सीखना है तो you can go through. Yeah, this is from my side. You can take over, Yash. Sure. So you can just close your screen so that we can talk. So screen. Yeah. I think it's done. Perfect. Yeah. So first of all, thank you so much, Rohan, for such an amazing presentation. I think there was some great learning, some great insights, a lot of practical learnings. काफी कुछ सीखने मिला. And the way you showed it step by step, आपने practically भी दिखाया on TradingView so that everyone can use that. So once again, thank you so much. I think everyone loved it and it was a great presentation. So some closing remarks from you before we take the feedbacks and I give the closing remarks. Yeah, thank you for this wonderful words. It was my pleasure to share my knowledge with all the participants. क्लोजिंग नोट यही रहेगा कि अगर आप मार्केट में उतर रहे हो तो डोंट जंप डायरेक्टली, या तो फंडामेंटल सीखो थोड़ा बहुत या फिर गो विथ टेक्निकल्स. कुछ भी एक ले रहे हो तो जस्ट गो थ्रू इट. अगर आप फंडामेंटल सीख रहे हो तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि ऐसा है कि मार्केट तो कभी बंद नहीं होने वाला. हाँ, बट अगर आप कैपिटल उसमें लगा रहे हो तो कैपिटल हो सकता है खत्म हो जाएगा, मार्केट बंद नहीं होगा. सो टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. मैं हमेशा यही साइकोलॉजी को फॉलो करता हूँ. मार्केट कभी बंद नहीं होगा बट हाँ हमारा कैपिटल खत्म हो सकता है. सो ऑन दैट नोट यू कैन गो विथ टेक्निकल्स, फंडामेंटल आपको जो सूट करे, and accordingly learn first and then try to earn. Great, definitely. So that is our tagline of Wealth Educate: learn as well as earn. Okay. Great. So I think thank you so much, Rohan. I think it was some great presentation. If anyone has any particular question, you can definitely ask in the chat box. And as Rohan has given his credentials also, so you can ask Rohan anytime on his Twitter ID, or maybe on his, you can mail him on his Gmail account. Okay. I think Rohan has explained in a very beautiful way, so I don't think so there's any question. Still, if you have any questions, you can watch the video again on our Facebook page, or within 1 month it would be uploaded on our YouTube channel. And definitely you can go on the YouTube channel, and there are already so many videos, and this will also be uploaded and you can watch it again and again so that you understand it better.
and definitely you can use it. I think there's some questions which are coming up, so I'll just take one or two of them before we end the session, because already it's 10:30 and I don't want the bashing from everyone. Okay, so I think someone has asked, can we use it in all time frames? uh, there's someone asking that. या जैसे कि बताया कि पर्सनली आई लुक इनटू वीकली, डेली एंड आवरली. मैं बहुत रेयरली 5 मिनट्स 15 मिनट्स में यूज़ करता हूँ, बिकॉज एज वी नो जितना छोटा टाइम फ्रेम मिलेगा उतना ही गायरेशन, उतना ही विप शॉट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको. सो ऑन दैट नोट मैं ज़्यादातर आवरली पे यूज़ करता हूँ, एंड ऑन द हायर साइड डेली एंड वीकली, विच इज़ विट आई प्रीफर. Okay, can we use it in the ranging market? या रेंजिंग मार्केट इट्स बेस्ट. अभी जो मार्केट चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, सारे हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाते हैं, एंड एज वी नो के 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है, और 30% टाइम ऑफ द मार्केट इट्स इन वन सिंगल डायरेक्शन. तो दिस इज नाउ 30% गोइंग ऑन इन निफ्टी ओवरऑल मार्केट. So it work best in ranging market. Okay, great. I think the one question which I would which came to my mind, that if someone is using suppose candlesticks or Heikin-Ashi like in total, मतलब अभी वो Okay. पूरा use कर रहे हैं, so can they use harmonic pattern for finding the reversals? I think that is very important, because candlesticks and Heikin-Ashi or maybe some traditional tool is not that much relevant for finding reversals. Correct. टू बी हॉनेस्ट मैं यही यूज़ करता हूँ कैंडल स्टिक. आई डोंट गो विथ दिस हिकन. हाँ, बट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट नॉट इन हार्मोनिक, बिकॉज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हिकन इज के वहाँ पे जो क्लोजिंग आता है इट इज़ नॉट द ओरिजिनल क्लोजिंग ऑफ कैंडल स्टिक. वो एवरेज आउट करके आपको क्लोजिंग दिखाएगा, तो दैट विड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग. And in to हाँ, keep ये it हम लोग कर सकते हैं, बट आई वाज आस्किंग uh, कैंडलस्टिक एंड हाइकनेस जो यूज करते हैं वो लोग इसके हार्मोनिक को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द रिवर्सल्स. uh, there might be a some slight in changes. मतलब results काफ़ी different हो सकते हैं, because candlestick का जो form होता है it's purely on open, high, low, close, and Heikin-Ashi is a bit different. It take consideration into averages. So I have not used on Heikin-Ashi, to be very frank. I purely use on simple candlesticks. Practically देख all जितने भी काफी different types of patterns, चाहे candlestick हो चाहे हाइकनेस or Renko, all everyone can use of course harmonic in that, like for finding like ABCD reversal they can use for finding a lot of reversal See, patterns. you can use, but अगर आप ऐसा you have to stick to this one. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप हिकनेशी से वापस कैंडलस्टिक में जा रहे हो, कैंडलस्टिक से हिकनेशी में जा रहे हो, सो वो आप मत करना. आप कंफ्यूज हो गए कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ. सो इफ यू आर डूइंग ऑन हिकनेशी, फॉलो ऑन हिकनेशी इटसेल्फ, और कैंडलस्टिक तो कैंडलस्टिक ही रखो. Great. Of course, that is very important, because you should not switch from one to the other. So I think with this, if you have any more questions, you can ask Rohan on his Twitter handle, or you can contact us on WhatsApp, and we'll definitely share it with Rohan so that he can clear your doubts. So once again, thank you so much, Rohan, for your great time and for sharing some great insights. And your presentation was amazing. And the way you linked it with some practical learnings, I think that was a great learning for all the audience. And asked like you had asked me that till 10:30 sab rehte hain nahi, so you can see that still we have more than 60-65 people on Zoom, and we have 20-25 people still on Facebook who are still learning, who have the quest to learn. And that is why it gives me a lot of motivation and pleasure to host people, because they show their eagerness to learn, and they join in. Like before 9 we had more than 100 people, so that's really great and motivating for me, and I think it would be there for you also. And thank you so much once again for some lovely insights and great presentation. And I hope you loved it by sharing this with the audience. Definitely. I love sharing the few knowledge I have, and thanks again for giving this platform to share my knowledge, and sharing this AB equal to CD harmonic patterns to all the attendees. And also we'll take the opportunity to thank you to all the attendees who are still uh, eager and learning. It's like 10:30 हो गया, फिर भी people are there, and I'm very much thankful to them as well.
Of course, and thank you so much, Rohan. And you'll be seeing on the chat box, we are getting some amazing feedbacks. So keep sharing those feedbacks with us because that motivates us to do more well and to call people like Rohan on our platform so that people like Rohan can share some great insights and some great knowledge and experience and wisdom which they have in the markets. So once again, thank you so much everyone for joining. Keep sharing your feedback, keep sharing your love with us, and keep joining our knowledge groups where we share a lot of knowledge and a lot of insights on markets. And definitely, like all the other videos we have, this video will also be uploaded on our YouTube channel very soon. So keep taking the benefit because that's free of cost, and we try to impart as much education, as much knowledge on markets as possible. So definitely, thank you so much everyone for joining. Next week again we'll have a great speaker like Rohan who will be sharing some great insights on a particular topic. So see you all next week at 9 o'clock. Till then, stay safe, stay at home, have a great trading and investing week ahead, and always try to give more rather than take. That is the takeaway from today. Good night, everyone. Stay safe, and I'll see you all next week. Bye bye.